It's already 34 degrees Celsius in Mumbai, but along with the mercury, the political temperature in the city is also rising. After the Azan and Hanuman Chalisa loudspeaker controversy, it is Hanuman Chalisa recitation that has the city on the edge. The independent MP MLA couple from Amravati, Maharashtra, Navneet Rana and her husband Ravi Rana had a few days back announced that they will be reciting Hanuman Chalisa in front of Chief Minister Thackeray's residence. The Shiv Sena, on the other hand, challenged the couple to do the same. Initially, according to the reports, the Maharashtra police had planned to stop them at Amravati itself. However, the couple managed to reach Mumbai on Friday morning. Since then, the Shiv Sainiks have been protesting at different corners of the city. A large group of Shiv Sena workers have also gathered outside Matoshri to challenge the MP MLA couple. A group of women workers led by Shiv Sena leaders have been stationed outside Matoshri with mallets or blunt mace. Some have also carried rolling pins in their hand to protest. Mumbai police on Friday, April 22nd, served a notice to MP Navneet Rana and her husband MLA Ravi Rana after the couple said that they would recite Hanuman Chalisa outside Matoshri. The couple was sent the notice under Section 149 of the Code of Criminal Procedure that allows the police to take steps to prevent cognizable offences. The Ranas arrived in Mumbai on Friday morning, and since then Shiv Sena workers have gathered at various locations in Mumbai, including Matoshri, daring Rana couple to venture near Matoshri. According to the police, the couple was staying at their Khar residence. DCP of Zone 9, Manjunath Shenge, served the notice to the couple to prevent a law and order issue. Police said that couple will be held responsible if the law and order situation is disturbed in the city. Shiv Sena workers also protested outside the residence of Amravati MP Navneet Rana in Khar and broke the barricades there. The Sena workers also threatened the Ranas with dire consequences if they chanted Hanuman Chalisa outside Matoshri. The entire situation has also taken a political turn. Let us hear what the workers and the leaders are saying. नवनीत राणा जी मतलब ये दोनों दाम्पत्य जो है ये बीजेपी के पिल्ले हैं, जो बीजेपी वालों ने छोड़ के रखे हुए हैं कि वो देख रहे हैं कि शिवसेना को कैसे बदनाम करेंगे। महंगाई का मुद्दा हो वो लेके है ना, महाराष्ट्र राज्य के जो सीएम है हमारे उद्धव साहब, उनके ऊपर सब ये कर रहे हैं। सब जगह पे ये लोग शिवसेना किस तरह से बदनाम हो जाए वही देख रहे हैं। और अभी हनुमान चालीसा पठन करने के लिए वो कल से आ रही है। कहाँ है? ट्रेन से आ रही थी, ट्रेन से नहीं आई, प्लेन से छुप छुप के आई, उसको पता है। सब शिवसैनिक वैसे भी उसको महाप्रसाद देने वाले हैं। तो आज भी हम लोग यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके उसका वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आई है, क्योंकि उसको पता है कि वो महाप्रसाद मिलने वाला है। और ये जो स्टंटबाजी कर रही है उसको बोलो ये स्टंटबाजी बंद करो। और वहाँ पे अमरावती में भी अगर इनको वैल्यू नहीं है तो मुंबई में कौन देगा इनको महत्व? उनको बोलो कि जैसे आए हो वैसे रिटर्न जाओ। यहाँ पे आने की है ना हिम्मत मत करना, नहीं तो हम लोग कल से ही उसको कहाँ पे छुपे है, वो कौन से बिल में है वो भी ढूंढ रहे हैं, वो भी मिल नहीं रही है। नहीं तो अगर वो मिलती तो हम लोग महाप्रसाद जहाँ पे है वो उसको वहाँ पे ही देंगे। अरे आप किसके हिंदुत्व के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? आपकी क्या पात्रता है? बाला साहब ने जब हिंदुओं का त्योहार लिया था, हिंदुओं के साइड में खड़े थे, तब आपका जन्म भी नहीं था, आप हॉस्पिटल में थे, आप पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे। कि शिवसेना के हिंदुत्व पे उंगली उठाना बंद कीजिए। और शिवसेना का हिंदुत्व दिखाने के लिए नहीं है, आचरण में लाने के लिए है, हिंदुओं की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए है। और हनुमान चालीसा का मुद्दा ट्रेंडिंग में आता है, आप उसको उठाते आगे आते हो। आपका प्रमाण पत्र रद्द हो रहा है, आपकी जो खासदार की है वो जा रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप आपकी बर्खास्त हो रही है, वो वापस लाने के लिए आपके ये जुमले चालू है। आप खाली बातें कर सकते हो, बातों का बतंगड़ बना सकते हो, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते। हिम्मत है तो आके दिखाइए। शिवसेना के सैनिक आपकी राह देख रहे, आपके स्वागत के लिए हम लोग कल से तैयार है। आपने बोला नहीं, हम तैयार है, आप बोलिए, आप आके तो दिखाइए। आपका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। हमारे वरुण जी सरदेसाई है, आदित्य साहब है, आपको महाप्रसाद देने के लिए पूरे सैनिक और साहब के आदेश के अनुसार हम खड़े हैं। आप मुद्दा उठाते हैं हनुमान चालीसा का, हम क्या कम पानी में धुले हुए नहीं है? बचपन से हमारी हिंदुओं की शिक्षा है। आप जनेऊ का मुद्दा आते हो उसको ट्रेंडिंग में लाते हो, हिंदुत्व का मुद्दा आता है उसको ट्रेंडिंग में लाते हो, मंदिर का मुद्दा आता है
भोंगा अजान ये बांटो और राज्य करो का मुद्दा बंद करो, सबकी सेवा करो, जनता की सेवा करो, तब जाके आप सफल हो जाओगे। हनुमान चालीसा आज पठन करने जाने क्या है हनुमान चालीस? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है हिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियां मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए, मैं इतना ही कहता हूँ। सर आज आपने सामना में लिखा है कि धार्मिक दंगों की ब्रांडिंग करने के लिए जॉनसन को बुलडोजर पर चढ़ाया है। तो लिखा है ना, ये मेरा कहना नहीं, देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। चलिए, हमें इसमें कुछ कहना नहीं है। वो लोग राजनीति करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे गलत राजनीति करते हैं, उनका पर्दाफाश करना है। मोहित कंबोज जो है कल रात यहाँ पर आए, आप उनसे कमेंट इसके बारे में पूछिए जिसके लिए हम बैठे हैं। थैंक यू। राणा दाम्पत्य जो है उन्होंने वहाँ कहा था कि हनुमान चालीसा का पठन मुख्यमंत्री जी करें, अन्यथा वो यहाँ आके करेंगे, पर वो अभी आए नहीं है। क्या मैं कहूँगी, एक तो हम लोग स्वागत के लिए इंतजार करें। मैं आपके चैनल से कहूँगी कि उनको वीडियो बनाने का बहुत शौक है, इंटरव्यू देने का बहुत शौक है। पूरा हनुमान चालीसा एक बार सबके सामने सुना दें। उनको 4 लाइनें भी अगर आ गई तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ, तो हम लोग उनसे बात करेंगे। पर यहाँ पर पहले हनुमान चालीसा सुना दे। रातों रात बनी हनुमान भक्त नहीं हो जाता। अब यहाँ पे हनुमान चालीसा या हिंदुत्व की बातें शिवसैनिकों को या शिवसेना को सिखाने की जरूरत नहीं। शिवसेना ने हमेशा हिंदुत्व का पुरस्कार किया है, हिंदुत्व को अपनाया और हिंदुत्व के साथ ही चल रही है, क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ी हुई संगठन जो है वो शिवसेना और ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं पूरे। जो 9 बजे हमने आज कहा था कि 9 बजे हम मातोश्री के बाहर जाके हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे, पर जिस तरीके से कल से जो सिर्फ सैनिक जो उद्धव ठाकरे के सैनिक हैं और जो बाला साहब के विचार जो भूल गए हैं, ऐसे सैनिक हैं, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हल्ला कर रहे हैं, कल मुझे लगता है सभी पूरे देश ने देखा होगा कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी के पूरा परिवार फैमिली वहां पर आई और उद्धव ठाकरे ने 2 घंटा मीटिंग ली और मीटिंग लेके ये डिसाइड किया है कि अपने जो गुंडे हैं उनको भेजकर इन पे हल्ला हमको करवाना है और इनको ठीक करना है। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? और एक आमदार, एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। पहला तो प्रश्न ये होता है उनके सामने। और आप जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कल लोगों के बीच में आकर उनके शिव सैनिकों को आश्वासन दे रहे हैं, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, इस तरीके से आश्वासन देके और उनको आदेश करते हैं सुबह 7 बजे सब शिव सैनिक तैयार हो, उनको ठीक करना है, इस तरीके की भाषा, हमला करना है। और अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू हम आप लोगों के संपर्क में हैं कि जिस तरीके से हमने पूजा की, हमने हनुमान जी का मूर्ति को, फोटो को आराधना की, नमस्कार की, क्योंकि आज शनिवार है। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की? इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? या उनको बैरिकेड तोड़ के हमारे घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी? उनको किसने रिलीफ दी? सबसे पहला प्रश्न है मेरा डिपार्टमेंट को। जिस तरीके से गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि राणा दंपत्ति ने अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ना है, अरे जब से आप लोग आए तब से सुव्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में खराब हुई है और आप अपने लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, अपने लोगों को और अपने डिपार्टमेंट को गलत तरीके से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
संवैधानिक न्याय प्रक्रिया को आप हाथ लगाने का पूरा काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। जिस तरीके से वो आके बोलते हैं कि नवनीत राणा, रवि राणा को मारना है, उनपे हमला करना है और अपने गुंडे हमारे घर तक भेजते हैं, ये सोसाइटी है और सोसाइटी में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। मुझे लगता है हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे जी क्यों कर रहे हैं। मैं आखिर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को विनती करूंगी, देश के प्राइम मिनिस्टर जी और राष्ट्रपति जी को भी विनती करूंगी कि हमारे महाराष्ट्र पे ध्यान दीजिए। हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, जो गुंडाशाही हो रही है, जो आदेश पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है, पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी गई है।